Hello student, today we discuss the frustum of cone. What is frustum of cone? It is a part of cone. For example, this is a conical shape, okay? Base is circular. Now if we cut this cone by a plane parallel to its base, बेस के पैरेलल यदि हम इसको यहाँ से कट कर दें तो क्या होगा? We get two parts of the cone. Upper part of the cone is a smaller cone and lower part of this cone which we get, this is a frustum of cone. क्लियर हुआ? ये frustum of cone है. यदि हम frustum of cone को देखें so there will be two ends. Cone में there is one base that is circular and top is a point, but when we cut it we get two ends, two circular ends. This is also a circle, this is also a circle, having different radii, okay? So this part is a frustum of cone. So in frustum of cone, what dimensions will be there? Radii of ends, its height and slant height. It has curved surface, two flat surfaces, so total surface area, and this substance occupies some space, so it has some volume. Okay? ये ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल यदि हम देखें कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे फ्रस्टम ऑफ कोन के एग्जाम्पल क्या है, तो जो हमारे घरों में ग्लास होता है पानी पीने का, नॉर्मली वो कई बार अब सिलेंड्रिकल भी होता है, लेकिन जिसमें आप देखेंगे कि लोअर पोर्शन जो है स्मॉलर रेडियस का सर्कल है, ऊपर ग्रेटर रेडियस है, तो ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन होगा. घरों में जो हम पौधे लगाते हैं तो जो हमारे गमले हैं वो एक फ्रस्टम ऑफ कोन के एग्जाम्पल है. ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे कंटेनर हमको मिलेंगे. हमारी जो बकेट है, बकेट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. तो ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में मिलते हैं जो जो कोन का एक पार्ट है जिसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं. तो चलिए आज हम देखेंगे कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, इसमें हम एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो if we draw a line diagram of frustum of cone, so first this is a cone and when it is, its lower radius is r1, when it is cut by a plane up to a certain height or from a height h height से हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो अपर पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, एक ये कोन अलग हो जाएगा. सो दिस इज अ फ्रस्टम ऑफ कोन. अपर पार्ट को हम रिमूव कर दें, रिमेनिंग पार्ट इज अ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो वी हैव अनदर रेडियस, लेट इज इट इज r2 and slant height is L. Okay, so if radii of ends of frustum of cone are r1 and r2, its height is h and slant height be L. So in cone we have a relation between height, slant height and radius. L square equals to h square plus r square. But here what will be the relation? Suppose this point is A. If we draw a perpendicular from point A to the base of this frustum of cone, suppose this point is B and this is C. So ABC is a right angle triangle. And what will be BC? BC will be r1 minus r2 because this length is r2. So this OB also r2. So r1 minus r2. So here we have a right angle triangle. This height will be h. So L square will be h square plus r1 minus r2 whole square. This is the formula for slant height.
or relation between radii, height and slant height. Now that the curved surface area of frustum of cone, that is pi, in place of r is r1 plus r2 into L, pi r L. Now next is the total surface area. Total surface area of frustum of cone, that is curved surface area, that is pi r1 plus r2 into L, plus area of ends. So area of ends are pi r1 square plus pi r2 square. This is the total surface area of frustum of cone. Now third part is the space occupied by it. So that is the volume of frustum of cone is 1 by 3 pi r1 square plus r2 square plus r1 into r2 into h. So this is the volume of frustum of cone. So we have relation between the dimensions of frustum of cone, then curved surface area, total surface area and volume of frustum of cone. अब अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ these formulas comes. तो ये हम लेटर जब एक वीडियो लेंगे इसके बाद एक कभी, तो उसमें ये हाउ द फॉर्मूला डेराइव्ड उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है जो हम लेटर स्टेज में डिस्कस करेंगे. तो ये फॉर्मूले हैं जिन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं. वॉल्यूम आप जानते हैं, यदि मान लीजिए एम्प्टी होलो फ्रस्टम ऑफ कोन है तो उसमें कितना सब्सटेंस फिल कर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम होगा उसका. और बाकी कर्व्ड सरफेस एरिया, जब यदि हम फ्रस्टम बनाना है तो उसमें कितना सीट लगेगा उसको हम निकाल सकते हैं, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं. ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर है. ओके, सो वी कम टू द क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन द फ्रस्टम ऑफ कोन. Now we come to the question number first of exercise 13.3. A drinking glass is in the shape of frustum of cone of height 14 centimeter. Height of the frustum of cone is given. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझें. तो ये इस तरीके का एक ग्लास हम लोग अपने घरों में देखते हैं. इट इज अ ग्लास. व्हाट इज गिवन? इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर. एंड्स के जो डायमीटर्स हैं वो 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर्स इज गिवन. So what will be the radii? To find the capacity means the volume, we have to find the volume. So first we know, since the diameters of ends of frustum of cone are 4 centimeter and 2 centimeter. So therefore its radii of ends, that is r1 is 2 centimeter and r2 is 1 centimeter, half of their diameters. Okay, and height of frustum of cone, that is h equals to 14 centimeter. We have to find the capacity of the glass, means the volume of the frustum of cone. So since the capacity of the glass equals to volume of the frustum of cone,
And what is the formula for the volume of frustum of cone? 1 by 3 pi r1 square plus r2 square plus r1 into r2 into h. Okay, now we put the value 1 by 3 into 22 by 7 within bracket. R1 is 2, so 2 square plus R2 is 1 square plus 2 into 1 into h is 14. Now simplify this. 7 2s are 14, so 1 by 3 into 22 into within bracket 2 square 4 plus 1 5 plus 2 7 into 2. So this becomes 44 into 7 upon 3, that is 28, 308 upon 3, and if you divide it 1 0 2 then 6 cubic centimeter. So this is the capacity of the glass. तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड करना है. एक चीज और यहाँ देखिए, व्हाट हैपेंड इफ द रेडियाई ऑफ बोथ एंड्स बिकम्स इक्वल. यदि दोनों फ्रस्टम ऑफ कोन के दोनों एंड्स के रेडियाई इक्वल हो जाएं, तो ये जो डिफरेंस ऑफ रेडियाई के कारण फ्रस्टम ऑफ कोन है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये बन जाएगा क्या, सिलेंडर. और यदि आप इन फॉर्मूलों में जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे फ्रस्टम ऑफ कोन में, उसमें R1 और R2 को इक्वल कर लें एंड इट इज इक्वल्स टू R, देन यू गेट द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर. जैसे यहाँ पर R1 R2 ये सब R हो गए, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो 3R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 by 3, सो 3 कैंसिल, सो पाई R स्क्वायर H वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो ये सिलेंडर से भी रिलेटेड है, बट डिफरेंस क्या है, दोनों के एंड्स की रेडियाई अलग अलग है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन of height 16 centimeter. The height of the frustum of cone is 16 centimeter, with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter. Means radii is given and height is given. Okay. Now find the cost of milk can completely fill the container at the rate of 20 per liter, and also find the cost of metal sheet used to make the container if the cost is rupees 8 per 100 square centimeter. अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं. फर्स्ट हमको ये फाइंड करना है कि उस कंटेनर में जो मिल्क हमने भरा हुआ है, इट फिल्ड विथ कंप्लीटली विथ मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर. माने हमें क्या करना है, वो जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. उससे हमको मिलेगा कि उसके अंदर कितना मिल्क है, और फिर जब मिल्क की क्वांटिटी हमें मालूम है तो हम रेट के थ्रू उसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट विच इज यूज्ड टू मेक द कंटेनर, दैट इज द फ्रस्टम ऑफ कोन. ठीक है ना. तो वहां पर हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया which is opened at one top, so chord surface plus area of its base. तो इसके लिए हमको स्लांट हाइट की जरूरत होगी जो इसमें नहीं है, तो वो हमको निकालना पड़ेगा. चलिए हम देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होगा. पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, उससे हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क मिलेगा. फिर हम सरफेस एरिया निकालेंगे, उससे हमें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट मिल जाएगा. तो ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में. चलिए हम एक लाइन डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं. ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कि इसका जो अपर एंड का जो रेडियाई है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और लोअर एंड का जो रेडियाई है वो 8 सेंटीमीटर. इसका जो हाइट है वो कितना है, हाइट इज 16 सेंटीमीटर. सो हियर द रेडियाई ऑफ एंड्स
radii of ends are R1 is 20 centimeter and R2 is 8 centimeter and height h is 16 centimeter. So to find the slant height, what we have, since L square equals to h square plus R1 minus R2 whole square. So this is 16 square plus R1 minus R2, 20 minus 8 whole square. So this becomes 16 square is 256 plus 20 minus 8 12 which is 144 और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400. L square is 400, so this gives L is 20. So slant height will be 20 centimeter. Okay, so we have radii, height and slant height. So we can calculate all the required values. Now we find the volume of the container. Volume of the container is the volume of frustum of cone, that is 1 by 3 pi R1 square plus R2 square plus R1 into R2 into H. We know the values, we substitute here. 1 by 3 pi is 3.14, it is given. Now R1 square, R1 कितना है 20 square plus 8 square plus 20 into 8 and H is 16. Okay, so now simplifying this is 1 by 3 into 3.14 within bracket 20 square कितना होगा 400 plus 64 plus 160 into 16. Okay, now add them. 1 by 3 3.14 into 400 160 plus 64 204 plus 400, so that is 604 into 16. Sorry, this is 160 plus 64 224 plus 400, so 624 into 16. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले. ये 8 plus 4 12, so 3 से ये कैंसिल होगा. 3 2 जा 6, 3 0 जा 3 8 जा 624. So what we have? We have 303.14 into 208 into 16. So 208 into 16, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10449.92 क्यूबिक सेंटीमीटर. सिंपल, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 3.14 into 208 into 16, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा. ओके, अब ये देखिए यहां पर हमारा जो वॉल्यूम है वो किसमें है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, और यहाँ कॉस्ट हमारी पर लीटर है. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्यूबिक सेंटीमीटर एंड अ लीटर. वो क्या है, सिंस 1000 cubic centimeter of volume is equal to 1 liter. इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि हम 10 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूबॉइड लें तो उस क्यूबॉइड की जो कैपेसिटी होगी वो 1 लीटर की होगी. ओके, मींस 1000 cubic centimeter 10 by 10 by 10 10 into 10 into 10 is 1000 is the capacity 1 liter. So we converted. So how much liter it will be? Dividing by 1000 it becomes कितना हो जाएगा 10.44 और 10.45 liter. 10.45 liter, that is the volume of container. Volume of container is same as, because it is completely filled with milk.
So volume of milk, this is the same as volume of milk. So cost of 1 liter milk, is rupees 20. So what will be the cost of milk to completely fill the container? So cost of 10.45 liter of milk equals to 10.45 multiplied by 20. So how much it is? 209, okay, rupees. So this is the cost of milk to completely fill the container. So that is the first part of the question. We have to also find the cost of metal sheet used to make the container. अब आपको कॉस्ट निकालना है इस कंटेनर को बनाने में जो मेटल शीट यूज हुई है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस, क्योंकि टॉप पर ये ओपन है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इट्स बेस. तो हम यहाँ पर आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा. Now the curved surface area, surface area of metal sheet, surface area of metal sheet used is its curved surface area of frustum of cone plus एरिया ऑफ इट्स बेस, क्योंकि बेस में मेटल शीट है. अब यहां पर हम वैल्यू इसका फॉर्मूला लिखें, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई रेडियस कितना है r2, सो पाई इंटू r2 स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल पाई r2 स्क्वायर. नाउ वी पुट द वैल्यू, कितना होगा ये पाई कॉमन है 22/7 r1 प्लस r2. r1 कितना है देखिए, r1 20 प्लस 8 एंड l कितना है 20 प्लस पाई हमने कॉमन ले लिया है, r2 कितना है 8 स्क्वायर. ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई दिस. पाई को आपको कितना यूज करना है 3.14, okay, and this becomes 28 into 20, 560 plus 64. कितना आ जाएगा ये 3.14 into, ऐड कर दें इसको, ये होगा 4 to 624 multiplied with 3.14. So this becomes 1959.36 स्क्वायर सेंटीमीटर. यदि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू होगी. अब यहां देखिए, ये तो हमें एरिया ऑफ मेटल शीट हो गया. सिंस कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट इज ₹8, ये गिवन था. कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट इज ₹8. सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1959.36 स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट विल बी 8 into 1959.36 upon 100. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 4 28 2 72 plus 2 74 7 47 4 8
and dividing by 100 we have 156.74 or 156.75 rupees. So that is the cost of metal sheet. The cost of metal sheet to make the container. So we have two answers. One is the cost of milk to completely fill the container, and second is the cost of the metal sheet to make a container. So these are the two answers. तो यहाँ हमने वॉल्यूम भी निकाला है, उसका सरफेस एरिया निकाला है, और वॉल्यूम से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं, कॉस्ट है, वो भी हमने निकाली हुई है. ओके. Now we come to the next question of this exercise. Question number 5. A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree. ये एक नई बात आपको यहाँ देखने को मिल रही है. Vertical angle is cut into two parts at the middle of its height. At the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum of cone so obtained be drawn into wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire. अब यहाँ देखिए कन्वर्शन का भी एक पार्ट है इसमें कि फ्रस्टम ऑफ कोन इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर. वायर इज इन द सिलेंड्रिकल शेप. इसमें रेडियस बहुत कम होगा, लेंथ हाइट उसका बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, है ना. तो लेकिन द शेप ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ देखिए इसको हम डायग्राम से थोड़ा समझने का प्रयास करें. यह हमने जो पहले कोन देखा था, तो यहाँ पर अभी हमको रेडियाई गिवन था, हाइट गिवन था, और हमें कैलकुलेट करना था. अब यहाँ क्या किया हुआ है इन्होंने कि ये जो वर्टिकल एंगल है, देखिए ये जो इसके एजेस हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, इट इज ऑफ 60 डिग्री. ओके. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे टू फाइंड द रेडियाई. क्योंकि रेडियाई मालूम नहीं होगा, हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हैं. तो रेडियाई हमें फाइंड करना पड़ेगा. आगे देखेंगे किस तरीके से हम उसको फाइंड करेंगे. और यहाँ से जब हम एक वर्टिकल एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा, और जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हाफ हो जाएगा. टोटल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. अब हम इसको लाइन डायग्राम से थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से ये डायग्राम बनेगा. देखिए, नाउ this is a cone. This is a cone whose vertical angle is 60 degree. whose vertical angle कितना है, 60 degree. और given क्या है, the height कितना है इसका, 20 centimeter. Means this height, if we draw perpendicular from vertex to the base, it gives the height. So height कितना है इसका, height is 20 centimeter. This height is 20 centimeter. Okay. ये दोनों चीजें हमको गिवन है. हमको it is cut into the middle of its height. ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मिडिल कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हाइट से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया. कट करने से क्या होगा, हमको ये एक अपर कोन मिलेगा, और लोअर पार्ट क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ कोन होगा. तो अपर पार्ट को हम अलग कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लोअर पार्ट है ये फ्रस्टम ऑफ कोन होगा, विच इज ड्रॉन इनटू अ वायर. अपर पार्ट नहीं, लोअर पार्ट, फ्रस्टम ऑफ कोन. ओके. अब हमारे पास देखिए, यदि हम यहाँ थोड़ा सा इन पॉइंट्स को लिख दें, O A B and P Q. ओके. नाउ इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, देन दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. और ये हाइट कितना होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मिडिल से कट किया हुआ है. अब देखिए हमारे पास वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, OAB एंड OPQ. इसमें क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में हमको बेस गिवन है. वी हैव टू नो द बेस और द एडजेसेंट साइड, एंड अपोजिट साइड वी हैव टू फाइंड. सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2. So we have to find the value of R1 and R2. And what is given, adjacent sides are given. So in triangle, we write here OP is perpendicular to PQ and OA
is perpendicular to AB. Perpendicular होंगे. So now in triangle OAB, OA upon AB, OA upon AB कितना होगा? OA क्या होगा? Base or the adjacent side to the opposite side, that is cot 30 degree. Okay, so here OA, how much? OA is 10. ये जो हाइट है ये कितना होगा? 10 होगा. तो 10 upon AB कितना है? R1 is under root 3. So this gives R1 is 10 upon under root 3 centimeter. यहाँ आप कॉट का 10 का यूज भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड. अभी अपन नेक्स्ट उसमें कर सकते हैं. इन ट्रायंगल OPQ, it is a right angle triangle, so opposite side to the adjacent side, ratio of opposite side, that is PQ upon OP, is tangent 30 degree. Okay, now we put the value. PQ is R2 and OP is 20, is 1 by root 3. So this gives R2 is 20 upon under root 3 centimeter. So we have R1 and R2, and height of the frustum of cone H will be 10 centimeter. Okay, तो अब हमारे पास रेडियाई हो गया और हाइट हो गया. अब हम फाइंड करेंगे. यहाँ साथ में एक और हम देख सकते हैं, यदि इस जो फ्रस्टम ऑफ कोन है इसको हमने वायर में ड्रॉ किया है, वी कन्वर्ट ड्रॉन इनटू अ वायर. सो लेट द लेंथ ऑफ वायर drawn be H is, or H1 is equals to H1 centimeter. Okay, it is H1 centimeter. ये हमने assume कर लिया. तो अब यहाँ पर the volume of frustum of cone is same as the volume of wire drawn. So volume of wire drawn equals to volume of the frustum of cone. Okay, now we write the formula. Wire is in the shape of cylinder, so pi r square h1, क्योंकि हमने इसका लेंथ कितना लिया हुआ h1 और रेडियस कितना है r, and it is equals to volume of frustum of cone 1 by 3 pi r1 square plus r2 square plus r1 into r2 into h. Okay, now what is radius? यहाँ पर पाई, देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, पाई इंटू आर स्क्वायर. आर कितना है? रेडियस ऑफ वायर. सो सिंस डायमीटर ऑफ वायर इज कितना है? डायमीटर ऑफ wire is 1 by 16 centimeter. So its radius will be, or r equals to 1 by 32 centimeter, half of the diameter. So it is 1 by 32 whole square into h1 जो हमें फाइंड करना है, 1 by 3 pi. Now put the value. r1 कितना है? R1 10 by under root 3, 10 by root 3 whole square plus R2 is 20 by root 3 whole square plus 10 by root 3 into 20 by root 3 into h. h कितना है इसका? 10. Okay, now pi will cancel from both the sides. Now what we have? 1 by 32 whole square into h1 equals to 1 by 3. Now we simplify these values. 10 upon root 3, that is 100 by 3. Okay, plus 400 by 3 plus 200 upon 3 into
10 और ये सिंप्लीफाई होकर कितना होगा 1/3 इंटू डिनोमिनेटर सेम है 100 प्लस 400 500 प्लस 200 700 अपॉन 3 इंटू 10 और यहाँ जो 1/32 स्क्वायर है इस ये होगा 1/32 इंटू 32 इंटू h1 तो यहाँ h1 कितना हो जाएगा 1/9 3 इंटू 3 इंटू 7000 इंटू ये न्यूमरेटर में होगा 32 इंटू 32 दैट इज द लेंथ। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने में ये कितना आ जाएगा 1/9 इंटू 7000 इंटू 1024 32 इंटू 32 1024 और इसको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से डिवाइड करेंगे तो 796444.44 सेंटीमीटर। ये डिवाइड करने पर इंटू करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये सेंटीमीटर में एक बड़ा लंबा फिगर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपको क्या करना 100 से आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो 7964.44 मीटर 7964.44 मीटर इस वायर का लेंथ होगा विच इज ड्रॉन फ्रॉम द फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, तो यहाँ हमने देखा ये एक थोड़ा सा नए तरीके का क्वेश्चन था कि यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम में हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, तो दैट इज द अनदर पार्ट ऑफ द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो यहाँ पर ये एक स्केच आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो वर्टिकल एंगल गिवन है तो ये उसका हाफ हो जाएगा और हम ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan या कॉट का यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं। कई बार रेडियस गिवन है हम हाइट भी निकाल सकते हैं, है ना, जो आगे डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरीके का है। और फिर वॉल्यूम कन्वर्सन भी है, फ्रस्टम ऑफ कोन कन्वर्टेड टू इनटू अ सिलिंड्रिकल शेप दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो इस तरीके से हमने ये फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। हमने अभी वॉल्यूम के से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स एंड फ्रस्टम ऑफ कोन। इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कैलकुलेशन में इजी होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो बच्चों को थोड़ा सिंपल भी लगते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा कि किस तरीके से इनको करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।